Good morning friends, again a warm welcome in my YouTube channel. With continuation of chapter Chemical Reaction and Equation, as we have studied matter and its classification in our last of videos. Some basic terms regarding chemical reaction and equation topic, what is reactant, what is product, all we have completed. What are the characteristics of chemical reaction? And why we need to balance a chemical equation? Why we need to balance a chemical equation? Balancing of chemical equation we have completed by heat and trial method. And in our last video, I have given you some questions regarding balancing of chemical equation. Hope so far you have completed all these questions in your notebook. एंड मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मेथड होता है. सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना होता है, उसके बाद आपको नॉन मेटल, आफ्टर देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन. जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हो तो आपको लास्ट स्टेप में चेक करना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं. फिर नॉन मेटल पे पहुंचते हो, फिर ऑक्सीजन पे, फिर हाइड्रोजन पे. आफ्टर दैट यू हैव टू चेक वेदर ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड और नॉट. Now in today's class our main topic is type of chemical reaction. What are the limitation of chemical reaction? Chemical reaction है उसकी क्या limitations होती हैं. मीन्स किसी भी chemical reactions को आप राइट करते हो तो उसमें क्या क्या कमियां होती हैं. chemical reaction में आपको कोई भी reactant और product की concentration given नहीं होती. Doesn't give information about time taken for reaction to complete. मीन्स किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसकी हमें किसी भी जनरल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. डज नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन यू विल स्टडीड इन योर 11th और 12th क्लास हायर स्टैंडर्ड. डज नॉट गिव अस कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट विच अफेक्ट द रिएक्शन. मीन्स किसी रिएक्शन को टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं करती. इट डज नॉट शो एनी चेंज और स्पीड ऑफ द रिएक्शन वेदर फास्ट और स्लो. किसी भी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं जज कर सकते वेदर दिस रिएक्शन इज स्लो एंड फास्ट. Now after recap of all these terms, we are coming to our main topic, that is type of chemical reaction. First is combination reaction. The reaction in which two or more substances combine together to form a single substance. Combine का क्या मतलब होता है? मीन्स आपस में combine कर जाना, मीन्स एक single product आपको दिखाई दे. Here I am taking example x plus y which gives xy. मीन्स इस रिएक्शन में x और y आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल जनरेट अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज xy. मीन्स जब भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल शो करना है तो आपको प्रोडक्ट में हमेशा एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा. टू और मोर और मैनी मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट in combination reaction. Formation of water. Hydrogen and oxygen combine together to form water, means this is a single molecule. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और वाटर जनरेट होता है. इन हेबर्स प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस in industrial level. Nitrogen combine with hydrogen in presence of iron as a catalyst and molybdenum as an promoter at temperature 700 Kelvin and 200 atm. Generation of ammonia molecule and hydrogen combine in Haber process in the ratio of 1:3. Here formation of water takes place in this way. This is hydrogen atom and this is oxygen atom. After reaction of hydrogen and oxygen, it will combine a radical, that is OH, generation of water molecule in this way. That means hydrogen and oxygen combine together to form a single product. This is Haber's process. Here nitrogen and hydrogen combine together to form ammonia. This becomes your container, and here compressor, nitrogen and hydrogen are feed gases and they will feel compress, means उनको compress किया जाता है और यहाँ पे cylindrical form में डाला जाता है. Nitrogen and hydrogen compressed together in the reactor and therefore generation of NH3, that is unreacted.
आफ्टर एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर NH3 पॉजिटिव कंबाइन अनरिएक्टेड, दैट मीन्स जो NH3 पॉजिटिव प्लस अनरिएक्टेड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो कंटेनर से मीन्स जो रिएक्टर से आपके पास यहाँ पे कंबाइंड होके आई है। हेयर हॉट वाटर आउट, हॉट वाटर है यहाँ पे आपके पास कंडेंसर लगा हुआ है, हॉट और कोल्ड वाटर को आपके पास यहाँ पे सिस्टम में है, हॉट वाटर आउट एंड कोल्ड वाटर यहाँ से आउट हो जाता है। हेयर दिस इज अमोनिया विच इज रेफ्रिजरेटेड यूनिट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। रिसाइकल्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस प्रोसेस की क्या ब्यूटी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप वापस से कंप्रेस करके रिसाइकल करके हीट एक्सचेंजर करके अमोनिया यहाँ से अनरिएक्टेड यहाँ से आप दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है टूटना, मीन्स कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू और मोर प्रोडक्ट में कंबाइन होता है, टूटता है। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप या तो हीट देते हो या थर्मली करते हो या इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से ब्रेक डाउन करना। डिकम्पोज मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन मीन्स यू कैन से दिस इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो आपको प्रोडक्ट में सिंगल स्पीसीज नजर आएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट साइड में टू और मोर स्पीसीज विल सीन। यू कैन सी हेयर दिस इज योर KClO3, when heated it will convert into KCl and O2. This is catalytic, CaCO3 CaO plus CO2. Decomposition reaction divided into three categories. Thermal decomposition, thermal means heat, heat से जो आपको decomposition reaction नजर आएंगी। Photochemical decomposition means in presence of sunlight, they are also known as photolysis. Electrolytic reaction in presence of electricity, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं डिकम्पोज होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट वी सी एन एक्टिविटी इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट बाय हीटिंग मीन्स दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और CBSE HBSE पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ये आपके पास बॉइलिंग ट्यूब है और बॉइलिंग ट्यूब को आपको ड्राई करके और इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं। हीट दी बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम। अब आपको बर्नर यूज करके और इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग ट्यूब को आपको बर्नर के साथ लेके जाना है, आपको इसको हीट करना है। ऑब्जर्व अ कलर चेंज इन दी क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब आपको पहले कलर देखना है और हीटिंग के बाद मीन्स आफ्टर हीटिंग क्रिस्टल्स का कलर कैसा हो जाता है, तो आपको ये नोट डाउन करना है एक्टिविटी में, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी आपको आंसर करना है विच कलर चेंज आफ्टर हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप देखते हैं फेरस सल्फेट दैट इज ग्रीन इन कलर एंड ऑन हीटिंग अमेजिंग इट बिकम्स कलरलेस। मीन्स फेरस सल्फेट हाइड्रेट जो फॉर्म में है उसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन हेयर यू कैन सी दिस इज ग्रीन कलर and hydrated ferrous sulfate on heating it remove its water molecule and after on again heating it convert into ferric oxide. With formation of ferric oxide SO2 and SO3 gases will be evolved in the system. So question इस फॉर्म में पूछा जा सकता है what happens when ferrous sulfate is heated। तो आपको पूरी रिएक्शंस नोट डाउन करके रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ferrous sulfate when heated it will convert into first ferrous sulfate that is colorless, again on heating a characteristic smell of SO2 and SO3 there will be formation of with ferric oxide. Color you can see here, ferrous sulfate crystals are green in color and ferric oxide color reddish brown in color. Okay friends, this was the example of thermal decomposition reaction. Now move on photochemical decomposition reaction. Means कोई reaction जो sunlight की presence में होती है और compound है वो decompose होता है, means product side में आपको 2 और more molecules seen होते हैं। First देखिए हम activity करते हैं to study photochemical decomposition of silver chloride. Silver chloride that is AgCl. Here procedure is आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश लेनी है आपको, उसमें आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालना है।
प्लेस दिस चाइना डिश इन दिस सनलाइट फॉर सम टाइम। आपको चाइना डिश को सनलाइट में रखना है कुछ समय के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। व्हाट विल यू सी? आपको सिल्वर क्लोराइड का कलर जो आपने स्टार्टिंग में लिया था और आफ्टर प्लेसिंग इट इन सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट हैपन्स? We will observe that white color crystals of silver chloride turn gray in sunlight. Means जो silver chloride white color का था, it will turn to silver chloride that is gray. AgCl sunlight turns to Ag plus Cl2. So we conclude that silver chloride is photosensitive in nature. It turns into gray color in presence of sunlight. Now today's our last of reaction, that is last part of decomposition reaction, which is electrolytic decomposition. In electrolytic decomposition reaction, with the help of electricity, we will see how decomposition reaction occur. Okay, this is our plastic mug. ये आपने प्लास्टिक मग लिया है यहाँ पे. This makes our hydrogen and this is our oxygen. These are test tubes and these are our graphite rods. यहाँ पे आपने ग्रेफाइट रोड्स लगाई हुई हैं. एक को आपने एनोड बनाया है. आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन वर्क्स एज एनोड एंड हेयर दिस इज योर कैथोड. ये आपका कैथोड का काम करेगा, ये आपका एनोड का काम करेगा. एनोड को आपको पॉजिटिव एंड कैथोड यू अज्यूम एज नेगेटिव एंड बोथ आर कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी. आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चेक करना है हाउ वाटर decompose into hydrogen and oxygen in presence of electricity. What will you observe? You observe that volume of gases collected in two test tubes are not same. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम हुआ गैसेस का कलेक्ट वो सेम नहीं है. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है आपका वॉल्यूम है वो रहा है आपका 1:2. The candle of the left side of the tube will burn with a pop sound. Means हाइड्रोजन गैस जिस भी टेस्ट ट्यूब में क्रिएट हुई है, जिस भी गैस टेस्ट ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया है वहाँ पे आपको पॉप साउंड सुनाई देगी जब आप उसके साथ एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं. नेक्स्ट वन इज वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस. इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. You should examine that hydrogen is on cathode and oxygen is on anode. ये क्वेश्चन एक बार एनटीएससी में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कहाँ पे मीन्स कौन से एनोड और कैथोड पे जाएगा. आपको लर्न रखना है हाइड्रोजन कैथोड HC. हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा, ऑक्सीजन विल वर्क्स एज एनोड. ऑक्सीजन एनोड पे कलेक्ट होगी. ओके फ्रेंड्स, दीज आर आवर all of combination and decomposition reaction types. Hope so for you are getting all these terms very clear. Okay, thank you very much.